Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about vestigial sideband modulation. So basically, we have discussed variety of different forms of AM, that is amplitude modulation. So if we recall that different types of AM, then we have discussed about double sideband full carrier. We have also discussed about double sideband suppressed carrier modulation, that is abbreviated as DSB-SC. We have also discussed about more efficient amplitude modulation technique, which is the SSB-SC. So if we focus on this SSB-SC, which is the more efficient amplitude modulation technique among all these three, but there is one problem in the generation of this SSB-SC wave. So as we discussed in the last class, we have two methods for generation of SSB-SC wave. One is the filter method, another is the phase shift method. So if we recall our filter method, then in filter method, first we generate double sideband suppressed carrier wave using balance modulator, then passing the output of this double sideband suppressed carrier wave through the filter, and the role of the filter is to suppress one of the sideband. But there is one problem in the designing of this filter, that is, there is a strict frequency response requirement of this filter, that is, it should have flat passband and very high attenuation outside that passband. And if you would like to design such frequency response characteristic filter, then it is very difficult in the practice. And at the high frequency, as we discussed, in filter method, we need frequency up conversion process. That is, we have to generate the SSB-SC wave at the low frequency, and then we will up convert the SSB-SC wave at the high transmission frequency. So to simplify these problems, we are using one more modulation technique, that is the vestigial modulation sideband modulation technique. So in vestigial sideband modulation, which is the compromise between double sideband suppressed carrier and single sideband suppressed carrier modulation. So as we know, in double sideband suppressed carrier, we are transmitting two sidebands full. So basically this is the lower sideband, that is LSB. This is upper sideband, which is abbreviated as USB. So in double sideband suppressed carrier wave, we are transmitting these two full sidebands, where in case of single sideband suppressed carrier modulation, we are transmitting only one sideband, either upper sideband or lower sideband But in vestigial sideband modulation, what we are doing, we are transmitting one full sideband, and part of the another sideband. So instead of transmitting the second full sideband, we are transmitting only part of the second sideband. So LSB का थोड़ा पार्ट हम ट्रांसमिट करेंगे, पूरा LSB ट्रांसमिट नहीं करेंगे. दैट इज द वेस्टेजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन. तो इसका एडवांटेज क्या है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज एक ही है ये मॉड्यूलेशन टेक्निक का, कि जो फिल्टर की स्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट थी, उसमें हम कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फिल्टर ऐसा ही होना चाहिए कि वो एक ही पासबैंड को वो पास करे. यहाँ पे उसमें हम थोड़ा रिलैक्सेशन, उसकी डिजाइनिंग में थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक साइड बैंड तो कंप्लीटली पास करेगा और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा पार्ट पास करेगा. सो द डिजाइनिंग ऑफ द फिल्टर कैन बी सिंप्लीफाइड. ओके, एंड उसका नाम वेस्टेजियल साइड बैंड क्यों रखा गया? बिकॉज यहाँ पे हम एक साइड बैंड को कंप्लीटली पास करें और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा पार्ट पास करें. और पार्ट का मतलब होता है वेस्टीज, वेस्टीज का मतलब होता है अपार्ट, वेस्टीज का मतलब होता है अपार्ट.
सो इसकी वजह से इसका नाम रखा हमने वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस फिगर, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर ट्रांसमिटिंग कंप्लीटली यूएसबी, अपर साइड बैंड कंप्लीटली ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड पार्ट ऑफ द एलएसबी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड। पूरा एलएसबी नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं लेकिन उसका थोड़ा पार्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो हमने फिल्टर ऐसा डिजाइन किया है, वीएसबी में हम ऐसा फिल्टर यूज करेंगे जो यूएसबी को कंप्लीटली ट्रांसमिट करे और एलएसबी का थोड़ा पार्ट भी वो पास करे, एंड दैट इज द वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। एंड वन थिंग यू कैन नोटिस ओवर हियर, दिस इज द वीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव और उसके साइड में हम दो गार्ड बैंड रखते हैं। दीज आर द टू गार्ड बैंड्स। गार्ड बैंड मतलब दैट इज अ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन टू वेव, मतलब यहाँ पे एक वीएसबी है, दूसरा यहाँ पे वीएसबी होगा, सिग्नल होगा, तो दोनों के बीच में थोड़ा फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी सेपरेशन देयर विल नॉट बी इंटरफियरेंस बिटवीन द एडजेसेंट वेव, मतलब दो एडजेसेंट वेव के बीच में इंटरफियरेंस नहीं होगा। ओके, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर दिस वेस्टेजियल साइडबैंड मॉड्यूलेटेड वेव। So as we know, in vestigial sideband modulation, we are transmitting one full sideband, and to transmit one sideband we require the frequency of FM. और दूसरा जो साइडबैंड है दैट इज अ लोअर साइडबैंड, उसका थोड़ा पार्ट ट्रांसमिट करे और लेट से उसके लिए जो बैंडविड्थ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो है एफ। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेस्टेज दैट इज द लोअर साइडबैंड, पार्ट ऑफ द लोअर साइडबैंड दैट इज एफ। तो एक साइडबैंड के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, बैंडविड्थ कितनी चाहिए, एफएम, और दूसरे के लिए कितनी चाहिए, एफ विच इज लोअर देन एफएम। सो टोटल कितनी बैंडविड्थ चाहिए, एफ प्लस एफएम और एफएम प्लस एफ। सो बैंडविड्थ ऑफ द वीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव इज एफएम प्लस एफ। नाउ लेट्स टुडे डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ दिस वीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव, हाउ दिस वीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव इज जनरेटेड। सो generation of the VSB modulated wave is almost similar to the generation of SSB wave or SSB-SC wave. So as we know, first we are using product modulator or balance modulator. Product modulator is also known as a balance modulator. And what is the function of balance modulator? The function of balance modulator is to generate DSB-SC wave. सो ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जो है, ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीएसबी एससी वेव जनरेट करेगा। सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज डीएसबी एससी वेव। और ये डीएसबी एससी वेव में कितने साइड बैंड होंगे, दो कंप्लीट साइड बैंड होंगे, एक अपर साइड बैंड होगा, दूसरा लोअर साइड बैंड होगा। अब हमें अगर वीएसबी सिग्नल जनरेट करना है तो वीएसबी सिग्नल में क्या होता है बेटा कि एक साइड बैंड पूरा ट्रांसमिट होता है और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा पार्ट ट्रांसमिट करते हैं। मतलब ये फिल्टर हम ऐसा डिजाइन करेंगे, ये साइड बैंड शेपिंग फिल्टर हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा हम डिजाइन करेंगे कि वो अपर साइड बैंड को कंप्लीटली पास करेगा और लोअर साइड बैंड का थोड़ा पार्ट वो ट्रांसमिट करेगा। एंड एट द आउटपुट वी आर गेटिंग द वेस्टेजियल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव। Okay, so basically this is the block diagram to generate the VSB modulated wave. Okay, so if you look at this block diagram and if you recall the block diagram of SSB generation, then these two blocks are almost identical. The only difference is designing of this filter. Difference किसमें आएगा, सिर्फ ये filter design में difference आएगा। उसमें frequency response पे strict requirement है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फिल्टर का ऐसा डिजाइन करना है कि वो एक ही साइड बैंड को पास करे। वेर इन केस ऑफ वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट इज नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब हमें इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा डिजाइन करना है कि एक साइड बैंड को वो कंप्लीटली पास करे और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा पार्ट और वेस्टेज वो पास करे। दैट इज द वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो इफ यू लुक एट द generation of VSB modulated wave mathematically, then as we know the input to the product modulator or balance modulators are modulating signal and carrier signal. Modulating signal is denoted as M of t. So M of t is nothing but our modulating signal, and carrier signal is given as AC cos 2 pi fct. So mathematically the carrier signal can be represented as cos AC cos 2 pi fct.
So this thing we know very well. So these signals are applied to the input to the product modulator, and the output of the product modulator is product of these two inputs. So output of the product modulator is expressed as P of t is equal to, it is a product of the modulating signal and carrier signal, which is the AC cos 2 pi fct into m of t. What is m of t? This is our modulating signal. AC cos 2 pi fct, that is our carrier signal. Now if we apply Fourier transform on the both the sides of this wave, ये जो हमें expression मिला है, let me named it as expression 1, and if we apply the Fourier transform on the both the side of this expression, then the Fourier transform of P of t, that is nothing but P of f. As we know, what is the role of Fourier transform? So Fourier transform converts time domain signal into frequency domain signal. So if we apply Fourier transform to the P of t, then P of t is the time domain signal, so its Fourier transform will be frequency domain signal, that is P of f. Okay, and cos 2 pi fct into m of t का Fourier transform आपको पता होगा, बिकॉज आपने सिग्नल एंड सिस्टम में Fourier transform कैसे निकालते हैं वो आपने ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो. So the Fourier transform of this is basically given as AC by 2 capital M f minus fc plus capital M f plus fc. And basically if we look at this, this represents the equation of double sideband suppressed carrier frequency spectrum. So basically this is the frequency spectrum of double sideband suppressed carrier wave. अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. वन इज द upper frequency, upper sideband frequency, which is the f plus fc, and another is the lower sideband frequency, which is the f minus fc. अब हमें क्या करना है कि एक हम साइडबैंड शेपिंग फिल्टर डिजाइन करते हैं. तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो कि ये जो वेव हमें मिला है, दैट इज DSBSC वेव, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये है, दैट इज P of f इज इक्वल टू AC by 2 कैपिटल M f माइनस fc प्लस M f प्लस fc. So basically modulating signal is shifted to this frequency, nothing else. So अगर हम ये फ्रीक्वेंसी Fourier ट्रांसफॉर्म को देखें, so modulating signal is shifted to f plus fc, f minus fc. Now हमें ये सिग्नल जो हमें मिला है DSBSC में, उसको हमें साइड बैंड शेपिंग फिल्टर से पास करना है. So let's say the frequency response of this sideband shaping filter or transfer function of this sideband shaping filter to be h of f. So h of f is basically transfer function of the sideband shaping filter. तो ये जो sideband shaping filter और simply let's say filter है, तो filter का जो transfer function है that is h of f, and its input is DSB-SC wave. DSB-SC wave. So the input to this filter is P of t and output is the vestigial sideband modulated wave, which is the S of t. So अगर मैथमेटिकली हम ये जो ऑपरेशन है फिल्टर का उसको मैं रिप्रेजेंट करूं, सो बेसिकली द आउटपुट दैट इज एस ऑफ एफ, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट दैट इज एस ऑफ एफ इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट दैट इज पी ऑफ एफ इनटू एच ऑफ एफ, विच इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फिल्टर. सो बेसिकली हमें पता है कि अगर कोई भी फिल्टर है या कोई भी सिस्टम है और इसका मुझे इंपल्स रिस्पांस पता है, सपोज इंपल्स रिस्पांस मुझे पता है, सपोज इसका इंपल्स रिस्पांस एच ऑफ टी है, लेट से फिल्टर का ये सिस्टम, सपोज मान लो कि फिल्टर इज अ वन टाइप ऑफ सिस्टम, तो ये सिस्टम का मुझे फिल्टर रिस्पांस पता है, इंपल्स रिस्पांस पता है दैट इज एच ऑफ टी एंड इनपुट दैट इज पी ऑफ टी. तो आउटपुट कितना होगा, याद करो सिग्नल एंड सिस्टम. So output of the system is given as convolution of input with the impulse response of the system. तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, S of t is equal to convolution of input with the impulse response of the system. तो इनपुट P of t है और उसका impulse response कितना है, H of t है. So they are convolved together. They are convolved together. So there is a convolution between the P of t and H of t. बट अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसको कन्वर्ट करें, मतलब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करें, अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करें, देन कन्वोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन.
ओके, ये प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन के फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये क्या बन जाएगा, द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस ऑफ टी दैट इज एस ऑफ एफ, द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट सिग्नल पी ऑफ टी दैट इज लेट्स से पी ऑफ एफ विच इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ टी। मल्टीप्लाई, ये कन्वोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच ऑफ टी दैट इज द कैपिटल एच ऑफ एफ। ओके, एंड पी ऑफ एफ इज ऑलरेडी नॉन टू अस, सो पी ऑफ एफ कितना है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इनपुट टू द फिल्टर और आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, दैट इज पी ऑफ एफ इज इक्वल टू AC by 2 m f माइनस एफ सी प्लस m f प्लस एफ सी। तो पी ऑफ एफ की जगह पे हम ये लिख देंगे और एच ऑफ एफ तो ऑलरेडी दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फिल्टर। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी गॉट, एस ऑफ एफ इज इक्वल टू AC by 2 inside bracket capital M f minus fc plus capital F plus fc into h of f, and this equation represent the VSB SC frequency spectrum or frequency spectrum of the output of this filter, that is a VSB SC wave, vestigial sideband modulated wave. Okay, so basically this operation or this block basically generates the vestigial sideband modulated suppressed carrier wave. So that is the VSB modulation. Now let's discuss about the advantages and disadvantages of this VSB modulation. So the main benefit of this vestigial sideband modulation is the decrease in the bandwidth. हमें पता है कि compared to double sideband suppressed carrier wave, the bandwidth is less. Okay, and it is approximately efficient like SSB. SSB के जितनी है लेकिन SSB से थोड़ी ज्यादा है, SSB से थोड़ी ज्यादा है। It is highly efficient in terms of bandwidth and power. And one major advantage of VSB is that designing of filter is simple as accuracy is not necessary. है ना, compared to SSB, the advantage is that the design of the filter is very simple because जितनी accuracy filter design में SSB में चाहिए इतनी accuracy यहाँ पे नहीं चाहिए, because यहाँ पे थोड़ी पार्ट लोअर साइड बैंड का हमें पास करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना हाईली एक्यूरेट चाहिए कि जो सिंगल साइड बैंड को ही पास करे, मतलब हाईली एक्यूरेट नहीं चाहिए इसका, इसीलिए द फिल्टर डिजाइनिंग इज सिंपल। बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिसिंग अलाउंस ऑफ द लोअर साइड बैंड पार्ट, द फिल्टर कंस्टेंट विल बी रिलैक्स, सो बोथ दिस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड लास्ट, फॉर इनकम्प्लीट LSB सप्रेशन प्रैक्टिकल फिल्टर्स आर यूटिलाइज, है ना। और यहाँ पे फिल्टर डिजाइनिंग में हमने रिलैक्सेशन दिया है, मतलब प्रैक्टिकली वो फिल्टर डिजाइनिंग पॉसिबल है। ओके, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द VSB मॉड्यूलेशन। नाउ लेट्स लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉड्यूलेशन। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस VSB मॉड्यूलेशन? सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज दैट बैंडविड्थ इज हायर कंपेयर टू SSB। अगर SSB के साथ कंपेयर करें तो उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाई है, बिकॉज एक साइड बैंड तो पास कर रहे हैं और उसका दूसरे साइड बैंड का थोड़ा पार्ट, मतलब वेस्टेज भी साइड बैंड वेस्टेज भी पास करे, तो मतलब वो जो वेस्टेज पास करे साइड थोड़ा पार्ट हम ट्रांसमिट करें, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बैंडविड्थ चाहिए। एंड अनदर सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट डीमॉड्यूलेशन इज डिफिकल्ट। ये डीमॉड्यूलेशन आपके लिए नया वर्ड है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द डिटेल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो डीमॉड्यूलेशन बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि डीमॉड्यूलेशन इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने जो काम किया है, जो प्रोसेस हुए, उसका रिवर्स प्रोसेस हम डीमॉड्यूलेशन में करते हैं। वी विल डिस्कस इन द डिटेल। सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द VSB मॉड्यूलेशन। सो अब तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बहुत सारे फॉर्म्स देखे, दैट आर दी डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन एंड वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। और मैंने आपको वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन की एप्लीकेशन भी लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि बेसिकली वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन इज यूज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन। जो हमारे घर पे जो टेलीविजन सिग्नल आते हैं उसमें वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन यूज होता है। ओके, सो दैट इज द वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ द वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन।
नाउ लेट्स लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ AM। मतलब हमने जो अलग अलग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में डिस्कस किया उसका थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन, दैट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ AM. We have also discussed about the double sideband suppressed carrier modulation. This is the another AM. We have also discussed about this single sideband modulated wave, and we have also discussed about the vestigial sideband modulation. Now let's compare all of these four. So if you look at this parameter of carrier suppression, तो double sideband full carrier में carrier suppression नहीं है, because we are transmitting the carrier as well. In double sideband suppressed carrier wave में हम कैरियर को फुल्ली सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कैरियर इज फुल्ली सप्रेस्ड। इन सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में वेव में भी हम कैरियर को फुल्ली सप्रेस कर रहे हैं, एंड वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में नहीं कर रहे हैं। ओके, साइड बैंड सप्रेशन की बात करें, मतलब दो साइड बैंड जो है स्टैंडर्ड AM में, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड। तो साइड बैंड सप्रेशन की बात करें तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर, नाम से पता चल रहा है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, मतलब वी आर नॉट सप्रेसिंग एनी साइड बैंड। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, वी आर सप्रेसिंग द कैरियर फ्रॉम दिस, बट वी आर नॉट सप्रेसिंग एनी साइड बैंड, सो देयर इज नो साइड बैंड सप्रेशन DSBSC। सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में हम एक साइड बैंड को कंप्लीटली सप्रेस करें, मतलब आइदर लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड इज कंप्लीटली सप्रेस, मतलब यहाँ पे सप्रेशन है, साइड बैंड सप्रेशन है, मतलब वन साइड बैंड इज कंप्लीटली सप्रेस। इन वेस्टिजियल साइड बैंड वन साइड बैंड इज कंप्लीटली सप्रेस एंड अनदर साइड बैंड इज पार्शियली सप्रेस्ड, मतलब एक साइड बैंड को हम कंप्लीटली सप्रेस कर देंगे और दूसरे साइड बैंड को पार्शियली, मतलब पूरा नहीं करेंगे, उसका थोड़ा पार्ट करेंगे। ओके, नाउ इफ यू लुक एट कंपेयर दिस ऑल फोर मॉड्यूलेशन टेक्निक इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, देन एज वी नो double sideband full carrier wave required bandwidth of twice FM. Double sideband suppressed carrier wave required the same bandwidth, that is a twice FM. And single sideband suppressed carrier wave required the frequency bandwidth of only FM, half of the DSBFC and DSBSC. And the vestigial sideband modulation required the bandwidth greater than SSB, मतलब SSB में जो बैंडविड्थ चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए, एंड लेस देन DSBSC, सो बेसिकली दिस लेस देन ट्वाइस FM। ओके, अगर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करें तो DSBFC में एफिशिएंसी नहीं है, बिकॉज उसमें ज्यादा पावर चाहिए और बैंडविड्थ भी उसमें ज्यादा चाहिए, सो इट इज नॉट मच मोर एफिशिएंट कंपेयर टू अदर्स। DSBSC मतलब मॉडरेट एफिशिएंट है, बिकॉज उसमें थोड़ा कैरियर को सप्रेस करने से थोड़ा पावर सेव होता है। SSB इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड अमंग ऑल दिस फोर। तो ये जो चार मेथड है, चार AM की डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है दैट इज द सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन। एंड VSB दैट इज ऑल्सो मॉडरेटली एफिशिएंट, बिकॉज उसमें एक साइड बैंड के साथ हम थोड़ा दूसरे साइड बैंड का पार्ट भी ट्रांसमिट करें, तो उसमें थोड़ी SSB के कंपेयर में उसमें थोड़ी बैंडविड्थ एंड पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। नाउ नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कंसेप्ट में हम उसको कंपेयर करें तो DSBFC में नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 1 है, एज वी नो। DSBSC में भी नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग इनपुट्स 1 है, SSB में भी नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग इनपुट्स 1 है, और VSB में भी 1 ही चाहिए, VSB में भी 1 ही चाहिए। नाउ अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपैरिजन करें तो DSBFC इज बेसिकली यूज इन द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, DSBSC that is a double sideband suppressed carrier is also used in the radio broadcasting. So both these methods, modulating techniques, are used in the radio broadcasting. SSB is basically used in the point-to-point mobile communication. It is used in the point-to-point mobile communication, and vestigial sideband modulation is used in the TV transmission. मतलब हमारे घर पे जो टीवी में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बेसिकली मॉड्यूलेटेड यूजिंग vestigial sideband modulation, that is the VSB. So basically this is the comparison of the different types of AM that we discussed. So if you conclude this comparison, then among all, in terms of efficiency, the SSB is the best, and in terms of simplicity of the generation, the VSB is best, or DSBSC is the best option.
नाउ सो अब तक हमने मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया, विच इज द प्रोसेस विच कैन बी टेकन प्लेस एट द ट्रांसमीटर साइड। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल को लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाना है तो हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, एंड मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म एट द ट्रांसमीटर साइड ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। एट द ट्रांसमीटर साइड द मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म। तो मॉड्यूलेशन करने से हम लॉन्गर रेंज, लॉन्ग डिस्टेंस रेंज तक हम सिग्नल को भेज सकते हैं, और दूसरे बहुत सारे एडवांटेज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सो फ्रॉम द ट्रांसमीटर और इन द ट्रांसमीटर the lower frequency information signal is modulated and transmitted to the receiver by use of channel. Now at the receiver side, once the modulated signal is received, modulation signal एक बार रिसीव हो जाने के बाद हमें उसमें से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। मतलब जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो मॉडिफाइड वेव है, वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल में थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ओके, वो मॉडिफाइड वेव है, मतलब जो कैरियर सिग्नल है दैट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब हमें क्या करना है, जो मॉडिफाइड कैरियर सिग्नल हमने रिसीव किया है एट द रिसीवर साइड विच इज द मॉड्यूलेटेड वेव, उसमें से इंफॉर्मेशन सिग्नल को और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बेसिकली हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। So what is demodulation? So demodulation or detection is the process of extracting original message signal from the modulated message at the receiver side. At the receiver side. मतलब demodulation is performed at the receiver side and modulation is performed at the transmitter side. And demodulation is the exactly reverse process of the modulation. जो modulation transmitter side हमने किया है उसकी reverse process, exactly opposite process is the demodulation and which is performed at the receiver side. Now the circuit which demodulates the modulated wave at the receiver side is basically known as a demodulator. So demodulation is the process of extracting the original message from the modulated wave, and जो सर्किट का यूज करते हैं हम डीमॉड्यूलेशन करने के लिए उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर सर्किट। ओके, so basically there are two types of amplitude modulation demodulators or AM demodulators. So basically there are two types of AM demodulators. One is the asynchronous detector और उसका दूसरा नाम है envelope detector, and second is the synchronous detector or product detector. So there are two types of AM demodulators, मतलब amplitude modulated wave को receiver side डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम दो टाइप्स के डीमॉड्यूलेटर यूज कर सकते हैं। वन इज द एसिंक्रोनस डिटेक्टर एंड अनदर इज द सिंक्रोनस डिटेक्टर। एसिंक्रोनस डिटेक्टर इज ऑल्सो नोन एज अ एनवेलप डिटेक्टर एंड सिंक्रोनस डिटेक्टर इज नोन एज अ प्रोडक्ट डिटेक्टर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ओके, सो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने जो वेस्टेजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन का डिस्कशन किया और कंपैरिजन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।